last class we will discuss till keywords. Yes, sir. So now you are writing a particular Go language programming. लिख रहे हैं आप लोग program. After certain discussion like input and output statement, already you can use input statement. Once we discuss some data type, variable declaration, then after you can in a position to write the language. ठीक है ना. तो कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. ठीक है. तो एनी doubts related to the previous class? No, sir. No. ठीक. Okay. Now today we'll discuss about the data types. Now Go, and as like other programming language, Go contains several data types and there is a support of several data types. So under Go data types, we just categorize first the data types. ठीक है ना. Basically, why we are using data types in program? Anyone? What is the use of data type in program? Is it necessary to include this topic whenever we discuss any programming language? If it is, then why? What is the basic responsibility fulfilled by the data types in any programming language? Anyone? To declare a variable, sir. Yes, to declare a variable only. To perform other functions like creating user-defined functions. So that is also one of the basic responsibility fulfilled by the particular language, the data type. But main responsibility is what? It will fix the range of the data, whatever data you are going to use in your program. आपके प्रोग्राम में जो डेटा आप यूज करने जा रहे हैं, what is the range of that data? Suppose if you are declaring any variable as an integer data type in C language, then the range of that data type is in between that particular bit. That means minus 2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1. So whenever the range n value of n is 16 bit, because in C the size of the integer is 2 byte. तो उस केस में हमारा क्या होगा? n अगर 16 बिट है तो what is the range of integer? That is 2 to the power 15 to 2 to the power 15 minus 1, जो फाइनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 32768, यानी माइनस 32768 टू 32767. So why we need this range? Because whenever you want to declare any variable as an integer data type, then the range of the value for that variable is limited to this number only. ठीक है ना. If you want to access or utilize use more than the value of this number, so then it will be out of range. आपका वो out of range हो जाएगा. Out of range होगा तो उस केस में you cannot access that data with the particular program. So जैसे for example, we just see that suppose if you are taking any number integer, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, and at the same time you are taking another variable reverse through which you find out the reverse of this number, then what is the reverse of this number? Reverse of this number is 5 4 3 2 1. So your compiler is not in a position to print this value reverse, because the data type for this reverse is integer, and the reverse, the value held by the reverse is more than the range of the particular integer data type. Are you getting the point? Yes, sir. So in this manner, whenever you are going to write any program in C language or C++ or any programming language, then you must consider the range of the data, whatever data you are going to use in the particular procedures. तो आप जो procedures में use करने जा रहे हैं, उसका data जो आप वेरिएबल डेटा टाइप ले रहे हैं वो कितने रेंज का डेटा यूज कर पाएगा, इसको आपको चेक करते हुए काम करना होगा. अगर आउट ऑफ रेंज जाएगा तो द वैल्यू या द आउटकम इज नॉट प्रिंटेड इन अ मैनर इन विच यू वांट टू प्रिंट इट. जिस तरह से आप प्रिंट करना चाहते हैं उस तरह से ये प्रिंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज
अब यहाँ रिवर्स अगर आपका 5 डिजिट का है और रेंज 32,767 है और इसका रेंज वैल्यू हो गया 54,321, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अब प्रिंट होने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको इसी रेंज का कोई पर्टिकुलर वैल्यू, तो आप सेम प्रोग्राम आपका अगर 4 डिजिट का 1 2 3 4 लेंगे तो काम करेगा, लेकिन जैसे ही वैल्यू इस रेंज से बाहर जाएगा तो आपका प्रोग्राम डिलिमिटेड हो जाएगा, यानी कि दैट प्रोग्राम is not giving you the correct form of the output, whatever output you want to generate through that program. Your logical, there is no mistake. So what is the mistake? That is the mistake related to the variable declaration, and that means selection of the data type. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हाई रेंज डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो बेसिक आपका जो हम लोग डिस्कस किए, दिस इज द पर्टिकुलर रेंज थ्रू विच वी कैन सेट द रेंज फॉर अनसाइंड और साइंड इंटीजर। ठीक है ना, लेकिन गो डेटा टाइप्स कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ सपोर्ट, यानी कि इंटीजर का भी है तो 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, हर तरह के इंटीजर वैल्यू के लिए अनसाइंड, साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर का यहाँ पर गो डेटा टाइप्स में सपोर्ट है। तो बेसिक जो आपका इसका जो बेसिक यूज है ये समझ में आ गया कि क्या यूज है डेटा टाइप का? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले गो में क्या है, अब ये डेटा टाइप जो आप जो रेंज लेते हैं उसी के हिसाब से हाँ स्टोरेज स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है ना, तो स्पेस ऑक्यूपाई आल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द डेटा विच यू आर यूजिंग इन योर प्रोग्राम। सबसे पहला बुलियन टाइप्स। तो बुलियन टाइप्स जैसे हम लोग C++ या सी में पढ़ते हैं, C++ में आप पढ़ रहे होंगे डेटा टाइप्स, वहां पर देखे होंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। उसी तरह से पहला यहाँ है बुलियन टाइप्स। तो बुलियन टाइप्स कंसिस्ट ऑफ 2 प्री डिफाइंड कांस्टेंट। तो हमारा जो बुलियन कांस्टेंट क्या है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वैल्यू लें a = 10, b = 20 और कुछ कंडीशनल चेकिंग करेंगे जो जिसका रिजल्ट बुलियन स्टेट में आएगा, तो वी हैव इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, ट्रू एंड फॉल्स। तो सपोज सी दिस a = 10 है, b = 20 है। if you are checking, if you want to check a greater than b, what is the result, true or false? a greater than b पाइथन में भी आप चेक करते होंगे, फॉल्स होगा सर। हाँ, तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बुलियन टाइप्स जो है प्री डिफाइंड कांस्टेंट्स है इज देयर। ट्रू और फॉल्स के लिए 2 कांस्टेंट है, यानी कि ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में 2 कांस्टेंट है। आइदर आपका कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा फॉर द सेक ऑफ इनपुट्स। a का वैल्यू अगर 10 है, b का वैल्यू अगर 20 है, तो a ग्रेटर देन b ये कंडीशन आपका होगा या फॉल्स। बिकॉज a का वैल्यू 10 है और b का 20, तो ये आपका कंडीशन फॉल्स होगा। a लेस देन b, because the value of a is 10 and value of b is 20, so 10 is less than 20, so this one is true. So in the same manner we have a boolean types variable and a boolean types data type used in the Go programming language. Second one is the numeric types. तो न्यूमेरिक टाइप्स में क्या आता है, जैसे इंटीजर और फ्लोट टाइप। अब इंटीजर और फ्लोट जो है, अगर आप एक बार इंटीजर या फ्लोट किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में डिक्लेयर कर दिए तो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपका वेरिएबल जो है वो इंटीजर या फ्लोट होल्ड करेगा। सी में भी सेम थिंग था। अब यहाँ पर जो दूसरा है आपका स्ट्रिंग टाइप्स, सी में या C++ में हम लोग डबल कोट में स्ट्रिंग लेते हैं और सिंगल कोट में कैरेक्टर लेते हैं, लेकिन डेटा टाइप कैर ही होता है। ठीक है ना, वी हैव ओनली डेटा टाइप इन द फॉर्म ऑफ कैर। तो कैर में अगर सिंगल कोट में स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारा आपका जो है कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया, और अगर डबल कोट में डाल रहे हैं तो वो एरे ऑफ कैरेक्टर आपका स्ट्रिंग हो जाता है। यस सर। तो यहाँ पर जो आपका स्ट्रिंग टाइप यूज होगा, स्ट्रिंग कीवर्ड यूज होगा, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो आपका है वो एक बार जब उसमें वैल्यू एलोकेट कर देंगे तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट इज इम्यूटेबल। दैट मीन्स वंस इट इज क्रिएटेड देन वी कांट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज नॉट मुटेबल वन। तो ये मुटेबल नहीं है, दिस वन इज द इम्यूटेबल। नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ टाइप अंडर डिराइव्ड टाइप्स। तो फोर्थ हमारा कैटेगरी है डेटा टाइप का यहाँ। तो डिराइव्ड टाइप्स में वी हैव लिस्ट ऑफ टाइप्स, pointer types, array types, structure types. Some of the name you already well known about that: pointer, array, structure, union, function.
हाँ, यहाँ सर नया किसी क्या का है, माइक ऑन है स्लाइस सर, टाइप बहुत नॉइज आ रहा है सर, क्या, बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है सर। कहाँ से नॉइज आ रहा है? किसी का माइक खुला हुआ है सर। म्यूट कर लीजिए। अभी कम हुआ? यस सर। यस सर। तो पॉइंटर आप जैसे पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पॉइंटर अरिथमेटिक सपोर्ट नहीं करता, हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। पॉइंटर टाइप्स, एरे टाइप्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन, एट द सेम टाइम क्लास का सपोर्ट यहाँ नहीं है। दैट्स वाई क्लास टाइप यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो नया इसमें क्या है, स्लाइस टाइप, इंटरफेस, मैप टाइप्स एंड चैनल टाइप्स। So these four are the new types. Rest of the types you already well known about that. Function types यहाँ different क्या है कि फंक्शन यहाँ पर जितना भी फंक्शन है, चाहे मेन फंक्शन हो या कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो फंक कीवर्ड से आपका जो है प्रिसीडेड होता है। तो आप जैसे फंक्शन लिखते हैं सी प्लस प्लस में, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है ना। वंस आई डिस्कस द पर्टिकुलर बेसिक सिंटेक्स, देन वी जस्ट स्टार्ट टू राइट एंड यूज द पर्टिकुलर syntax. Now these are the data types list, ठीक है ना, 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। Now अब इसमें से जो मेन हमारा जो है, ये पहला तो बुलियन टाइप्स, यू ऑलरेडी नो दैट कि बुलियन जो हमारा डेटा टाइप होगा उसमें ट्रू और फॉल्स 2 कांस्टेंट होगा। लेकिन न्यूमेरिक टाइप में इंटीजर टाइप कंटेन्स सेवरल टाइप्स ऑफ डेटा, several data type of data under integer type as well as float type. तो कुछ एग्जांपल प्रोग्राम जब हम लोग देख रहे थे तो वहां हम देखे थे कि आपका यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, इसमें तो नहीं है, इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम यू जस्ट सी कि हम लोग देखे थे कि float 64 in this manner the particular program is written. So now the way of writing will be changed here. फंक्शन जब हम लोग डिस्कस करेंगे, वे ऑफ राइटिंग चेंज क्या है कि C++ में हम लोग क्या लिखते हैं, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप यहाँ पर सबसे बाद में, रिटर्न टाइप के बाद हम लोग पहले क्या करते हैं, डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप के बाद विद इन पैरामीटर हमारा यहाँ डेटा टाइप जो लिखा गया है वो वेरिएबल के बाद में लिखा गया है। ये थोड़ा सा रिवर्स है यहाँ पर। फ्लोट 64 इज द डेटा टाइप, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। फ्लोट 64 इज अ फ्लोट डेटा टाइप, लेकिन फ्लोट 64 रिप्रेजेंट 64, तो इट इज अ 64 बिट, ठीक है ना, 64 बिट डेटा के लिए आपका ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर और पहले जो C++ में आप कोडिंग कर रहे हैं वहां पर डिफरेंस यहाँ यही है कि डेटा टाइप के बाद वेरिएबल नहीं लेकर वेरिएबल पहले और उसके बाद डेटा टाइप हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल पहले लेने के बाद एट द सेम टाइम C++ में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि अगर कोई सेम डेटा टाइप है तो उसको कॉमा से सेपरेट करके एक ही बार डेटा टाइप आप उसका जो है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में करें। लेकिन यहाँ पर यह भी प्रोविजन है कि एक से अधिक डेटा वेरिएबल अगर सेम डेटा टाइप का होगा तो सबको कॉमा से सेपरेट करके एक ही बार हम उसका डेटा टाइप जो है प्लेस आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन अगेन जब हम लोग इंटीजर डेटा टाइप देखेंगे, एग्रीगेट टाइप्स भी एक तरह का पर्टिकुलर टाइप है यहाँ पर, जिसमें एरे, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर यूनियन, ठीक है ना, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, जब एक से अधिक डिराइव डेटा टाइप को आप कंबाइंडली यूज करेंगे देन दैट इज ट्रीटेड एज एग्रीगेट टाइप्स। C++ में उस चीज को आप डेलीगेशन से देखते हैं, ठीक है ना। डेलीगेशन आप जब यूज करेंगे C++ में तो वहां पर आप देखेंगे कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में एज ए डेलीगेट यूज होगा। तो इनहेरिटेंस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डेलीगेट जैसे
अगर डेट ऑफ बर्थ एक क्लास आप बना लिए तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ अगर हमने स्ट्रक्चर बना लिए तो डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा, डी, डे, मंथ और ईयर। अब इस डेट ऑफ बर्थ को आप अलग अलग क्लास में वहां यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लास में यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्लास में स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, सबके लिए ये डेट ऑफ बर्थ का ऑब्जेक्ट जो है एक्सेसिबल होगा। एम्प्लॉय क्लास में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है ना, इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेम डेट ऑफ बर्थ जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट एज ए डेलीगेट स्टूडेंट क्लास में भी यूज होगा, एम्प्लॉय क्लास में भी यूज होगा, ठीक है ना। तो दैट इज द पर्टिकुलर एग्रीगेशन ऑफ द पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो क्लास इज ऑल्सो डेटा टाइप इन C++, बट हियर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्लास, ठीक है ना। वी हैव स्ट्रक्चर, यूनियन, एरे एंड ऑल कम्स अंडर डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो जो सिंटेक्स हम लोग जनरली अभी देखे कि जो फंक्शन होगा उसका सिंटेक्स क्या होगा, फंक कीवर्ड, चाहे वो आपका मेन प्रोग्राम हो या कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, मेन फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, उसको फंक कीवर्ड से प्रीसीड करेंगे। फंक्शन नेम जैसे C++ में लेते हैं वैसे ही रहेगा। फिर वेरिएबल जो पैरामीटर में आप लेते हैं उसको सबसे पहले यूज करेंगे, वेरिएबल यानी डेटा टाइप को लेने से पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अगर एक से अधिक वेरिएबल होगा तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। इफ द वेरिएबल हैव सेम डेटा टाइप then we can use one in place of two separate data type। तो float 64 is the data type for AB, तो हम float 64 AB दोनों के लिए ले सकते हैं। and after that we write the return type, यानी इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, तो float 64 is the return type। जस्ट उल्टा है C++ में जो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। ये float 64 C++ या C में लिखते सबसे पहले, उसके बाद आपका फंक्शन नेम होता, फिर आपका होता डेटा टाइप फॉर द पैरामीटर। C++ में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप दो डेटा टाइप अगर सेम डेटा टाइप यूज कर रहा है पैरामीटर तो उसके लिए एक ही आप डेटा टाइप रिप्रेजेंट कर दें, सेपरेटली दोनों को देना जरूरी है, कंपाइलर अंडरस्टूड तभी कर पाएगा। तो दैट इज द फंक्शन स्ट्रक्चर, वी डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल्स अबाउट द फंक्शन इन गोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिस्ट आउट ऑल इंटीजर टाइप्स, यानी कि जो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपके पास लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप है। दैट मीन्स व्हेनेवर यू वांट टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज ए इंटीजर डेटा टाइप देन यू हैव लार्ज सेट ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पर जो डेटा टाइप का नाम लिया गया है उसमें तीन पार्ट आप समझ लीजिए। पहला चीज कि UINT और 8 इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया गया है। U stands for what? U stands for unsigned. You already know about that. This is the for integer, and this one is for 8 bit, यानी कि ये आपका बिट ओरिएंटेशन बता रहा है। ये आपका नॉर्मल जो डेटा टाइप है इंटीजर फ्लोट हम पढ़ते हैं हम लोग, वो इंट डेटा टाइप के लिए इंट आपका यहाँ यूज हो रहा है इंटीजर के लिए, और U stands for unsigned, और कंबाइंडली जो है ये UINT 8, बिकॉज जैसे UINT 8 है उसी तरह से UINT 16, UINT 32, UINT 64 ऐसे आगे दिया है। U stands for unsigned। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय अनसाइंड, एनीवन? उस रेंज का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। ओनली पॉजिटिव वैल्यू इज इंक्लूडेड इन दिस। तो उसके लिए यहाँ जो रेंज लिखा गया है हम लोग यूज करते हैं 0 to 2n-1। दिस इज द पर्टिकुलर रेंज थ्रू विच वी कैन सेट द रेंज ऑफ ईच एंड एवरी इंटीजर डेटा टाइप। तो यहाँ पर आपका जो है UINT 8, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, अनसाइंड 8 बिट इंटीजर्स। 8 बिट इंटीजर्स मतलब कि n का वैल्यू कितना है, 8, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 to 2n-1, दैट इज 0 to 255। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द रेंज ऑफ ईच अनसाइंड और साइंड इंटीजर विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अनसाइंड इंटीजर के लिए ये लेंगे रेंज के लिए, और साइंड इंटीजर के लिए लेंगे -2n-1 to 2n-1 ठीक है। तो अब ये समझ में आ रहा होगा आपका कोई UINT 8 है, UINT 16, UINT 32, UINT 64 क्या है? Yes, इसमें sir. किसी को डाउट नहीं है ना? रेंज भी आप निकाल लेंगे दोनों तरह से।
Yes, sir. नाउ यहाँ Sir. तक ABCD यहाँ तक तो आपका हो गया अनसाइंड इंटीजर। नाउ उसके बाद आप देख रहे हैं कि int 8, int 16, int 32 और int 64 भी लिखा हुआ है। दैट मीन्स इट इज फॉर साइंड इंटीजर, ठीक है ना, साइंड 8 बिट इंटीजर, साइंड 16 बिट, साइंड 32 बिट, साइंड 64 बिट। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों प्रोविजन है, यहाँ साइंड और अनसाइंड दोनों के लिए आप डिफरेंटली यूज कर सकते हैं। तो रेंज अगर आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू यूज करना है तो अनसाइंड इंटीजर यूज कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का वैल्यू आपके कैलकुलेशन मैनिपुलेशन में आएगा तो आप साइंड इंटीजर का 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डेटा टाइप कैसे लिया जा रहा है इसमें? Similarly, Yes, sir. similarly in floating types, we have Sir. float 32, float 64. Sir. Float 32 is for 32 bits floating point number. Float 64 is for 64 bit floating point numbers. ठीक है ना? अब ये सजेशन आपका IEEE 754 ये आपका ये सजेस्टिव आपका जो है ये प्लेटफॉर्म है जहां पर इसको जो है मेंशन किया गया है 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स 64, कॉम्प्लेक्स 128, 64 और 128 का मतलब 64 बिट और 128 बिट। कॉम्प्लेक्स नंबर यू ऑलरेडी नो विच इज रिप्रेजेंटेड इन A plus IB in which real and imaginary both part is there। तो रियल और इमेजिनरी ये जो अगर 64 बिट कहा जा रहा है तो इट इज बोथ, इट इज फॉर बोथ रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट के लिए भी आपका 64 बिट में ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, रियल के लिए 32 और इमेजिनरी के लिए 32। 128 में भी ये दो भाग में बढ़ जाएगा 64 और 64, यानी 64 रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए भी 64, टोटल 128। so that is for floating types। next some other numeric types is what, यहाँ पर आप uint 8, int 32 के लिए ये भी नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइट uint 8 के जगह बाइट और int 32 के जगह RUNE आप लिख सकते हैं। 32 और 64 बिट्स के लिए uint आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों सपोर्ट करेगा। और uint की जगह int जैसे आप बोलते हैं साइन इंटीजर और इंटीजर, तो uint के लिए यहाँ पर int यूज कर सकते हैं। और अनसाइंड इंटीजर टू स्टोर अनइंटरप्टेड बिट्स ऑफ पॉइंटर वैल्यू, इसको यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये नेम कन्वेंशन कहीं पर भी अगर आप देखें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो this is the whole about the particular data type। तो डेटा टाइप क्लियर समझ में आ रहा होगा सबको, डेटा टाइप क्या लेना है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज है ना, दैट इज द गो वेरिएबल्स। तो गो वेरिएबल सबसे पहले हम लोग जब देखे कीवर्ड्स में हम देखे थे कि कीवर्ड्स में देयर इज वन कीवर्ड where, जैसे where इज द कीवर्ड। Yes, sir. यस सर। तो where Yes, कीवर्ड sir. को यूज किया जाएगा जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होगा गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वी यूज द where कीवर्ड, ठीक है। तो where कीवर्ड इज यूज्ड व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस एनी वेरिएबल। लाइक अगर हमको लिखना है A B, ठीक है ना, और इसका डेटा टाइप लेना है सपोज uint 32, तो इसके पहले हमको var कीवर्ड लगाना होगा। दैट मीन्स var A B uint 32। जनरली हम लोग C++ में कैसे लिखते हैं, वी जस्ट मेंशन हियर int A B सेमीकोलन। तो ये int अब आपका आखिरी में लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज, ये सेमीकोलन मेंशन नहीं होगा, ठीक है ना, जो हम लोग C++ में सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, बिकॉज सेमीकोलन इज इंटरनली एडजस्टिफाइड बाय द पर्टिकुलर कंपाइलर
तो अलग से हमको सेमीकोलन देने का जरूरत नहीं होता है। तो बिफोर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द गो वेरिएबल्स, एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज वेरिएबल्स? व्हाट इज वेरिएबल्स? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल क्या है? सर ये मेमोरी यूनिट है जो वैल्यू को स्टोर करता है। क्या करता है? कैरेक्टर डिफाइन करता है सर। हाँ, तो यू कैन मेंशन इट इज द नेम गिवन टू, किसको देते हैं ये नाम? गिवन टू अ स्टोरेज एरिया पर आप डेटा को रखना चाहते हैं। इट इज द स्टोरेज एरिया, ठीक है ना, दैट द प्रोग्राम सर आनंद कुमार से आवाज आ रहा है। ये तो म्यूट हो गया जी। थोड़ा फैन आवाज कर रहा है। You know, it is the name given to a storage area that the program can manipulate. जिस एरिया को प्रोग्राम मैनिपुलेट करता है, तो यहाँ पर ईच वेरिएबल इन गो, आपका जो गो में जो वेरिएबल होगा उसमें एक हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक टाइप होगा। इन गो हैज अ स्पेसिफिक टाइप, ठीक है ना, एंड दैट स्पेसिफिक टाइप डिटरमाइंस द साइज ऑफ द पर्टिकुलर। जैसे UN32 हम जो स्पेसिफिक्स जो आपका टाइप दिए, ये तय करेगा कि आपका जो वेरिएबल है उसका साइज क्या होगा, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ईच वेरिएबल इन गो हैज अ स्पेसिफिक टाइप, ठीक है ना, विच डिटरमाइंस वो क्या डिटरमाइंस करेगा? डिटरमाइंस द साइज and layout, here size and layout of the variables, ठीक है ना, मेमोरी, ठीक है ना। नाउ अब द रेंज का जरूरत क्यों है? क्योंकि हम अभी देखे कि अगर रेंज से बाहर कोई डेटा आप लेते हैं तो उस केस में आपका जो प्रोग्राम है उसको वैलिडेट नहीं कर पाता है, यानी जिस तरह का आउटकम आप चाहते हैं उस तरह का आउटकम वहां पर जनरेट नहीं हो पाएगा। एंड यू ऑल्सो नो दैट इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वेरिएबल्स इन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर ट्रीटेड इन डिफरेंट मैनर। तो एज वी नो दैट गो इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है, तो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एज लाइक C++, case sensitive language, so that the variable written in a small case and capital case is treated differently या act differently by the Go compiler. तो एज लाइक योर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर भी आपका जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने के चलते आपका जो भी वेरिएबल होगा वो कैपिटल या स्मॉल जो भी जिसमें नाम लेंगे वो डिफरेंटली आपका ट्रीट होगा। जैसे ABC और ABC, दिस इज ट्रीटेड एज टू डिफरेंट वेरिएबल इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ द बेसिक टाइप जो आपका होगा, बेसिक टाइप जो वेरिएबल का होगा, दैट मीन्स कि व्हेनेवर वी आर नॉट मेंशनिंग एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप्स फॉर दैट, तो बेसिक वेरिएबल टाइप्स आपका क्या है? बेसिक वेरिएबल टाइप्स आपका हो जाएगा बाइट, ठीक है ना, बाइट, देन यू कैन से इंट जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, एंड देन फ्लोट 32। दीज आर द बेसिक data type used for Go
वेरिएबल। अब आप ये समझिए कि अगर इंट यूज हो रहा है तो इंट यूज हो रहा है, इसका मतलब कि इंट 16 2 बाइट यूज हो रहा है, बाइट यूज हो रहा है तो 1 बाइट यूज हो रहा है, फ्लोट 32 दैट मीन्स 4 बाइट। तो जनरली जो C++ में भी हम लोग लिखते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं, कैर। कैर के लिए क्या करते हैं, 1 बाइट। ये आपका बेसिक डेटा टाइप कैर हो गया। इंट के लिए क्या यूज करते हैं, 2 बाइट करते हैं ना, यस सर। और फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं 4 बाइट। तो इस जैसे हम लोग वहां C++ में करते हैं वैसे ही यहाँ पर बाइट, इंट और फ्लोट 32 ये आपका बेसिक डेटा टाइप है जिसको गो वेरिएबल में यूज करते हैं। अगर हमको फ्लोट वेरिएबल लेना है होता है तो हम फ्लोट वेरिएबल लेते हैं। हम इसके बाद डबल या इंट के बाद लॉन्ग इंटीजर सोचते हैं कब, जब हमको लगता है कि 2 बाइट से ज्यादा का डेटा है, ठीक है ना। कैर से ज्यादा आगे बढ़ना है हमको तो कैर से आगे हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। जब हमको लगता है कि 1 बाइट से नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स इंफॉर्मेशन रखा जाएगा, तब फिर हम स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं कैर में। बट बेसिक डेटा टाइप हमारा क्या हुआ, कैर। और जब स्ट्रिंग के बारे में सोचेंगे देन दैट स्ट्रिंग इज व्हाट, दैट स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर इन द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो ईच कैरेक्टर इज ऑफ 1 बाइट। तो यू ऑलरेडी नो दैट कि इनसाइड द कंप्यूटर आपका जो इंफॉर्मेशन है वो 0 1 में स्टोर होता है, बिकॉज योर कंप्यूटर हैंडल द इंस्ट्रक्शन इन 0 1 फॉर्म। तो 1 बाइट का मतलब कितना हो गया, 8 बिट। तो हर कैरेक्टर आपका 8 बिट का होगा, एक एक बाइट का होगा। तो स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं C और C++ में। तो उसी तरह से यहाँ बाइट, इंट और फ्लोट 32 ये आपका हो गया बेसिक डेटा टाइप्स। अब इसके अलावा जो है आप यूज करिए पॉइंटर, एरे, स्ट्रक्चर, सब में ये यूज होगा, ठीक है ना। सब में एज ए ये क्या होगा, डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्यों कहा गया उसको, एनीवन। पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, स्लाइस, मैप, चैनल, जितना टाइप हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सब में ये यूज हुआ है। डिराइव्ड डेटा टाइप क्यों कहा गया उसको, ये सारे डेटा टाइप को डिराइव्ड डेटा टाइप के रेंज में क्यों रखा गया है, इसको डिराइव्ड डेटा टाइप में क्यों रखा गया है, why derived name is suggested for these types of data in Go programming language, कोई बताएंगे। सर क्योंकि ये सब बेसिक डेटा टाइप से बने हैं। बिल्कुल, because all are derived from the basic data type, because पॉइंटर जो है उसका डेटा टाइप इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, फ्लोट 32 बाइट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पॉइंटर किसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। एरे भी आपका जो है वो कंटेनर ऑफ इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट डेटा, फ्लोट वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका है। तो अगर हम इंट एरे लिखते हैं नेम, तो इसका मतलब है कि int is the data type which is used to derive another data type named array in which integer data elements are available. So that is the particular concept. So that is, ये जो तीनों हम लोग यूज करेंगे, that is used as a basic data type in Go programming language. Then next we have to discuss about the variable declaration in Go. Variable declarations in Go. तो जनरली जैसे भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन यू कैन मेंशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन या डिफिनेशन करने का मतलब क्या है, डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन यू ऐड आल्सो, बिकॉज एंड या और लिख दीजिए, और डिक्लेरेशन और डिफिनेशंस इन गो। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन डिफिनेशन क्या बताता है कंपाइलर को, एनीवन। वेरिएबल डिफिनेशन से कंपाइलर को क्या पता चलता है, तो इट टेल्स द कंपाइलर, हाउ मच, सर मेमोरी एलोकेट करने के लिए। हाउ मच स्टोरेज, ठीक है ना। जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, हाउ मच स्टोरेज टू, हाउ मच स्टोरेज, नॉट ओनली हाउ मच, कहां पर आपका हो रहा है उसका भी पता चलता है, वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज, ठीक है ना। टेल्स द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज क्रिएटेड, ठीक है ना, क्रिएटेड
या क्रिएट, नॉट क्रिएटेड, क्रिएट फॉर द वेरिएबल, क्रिएट फॉर द वेरिएबल। यानी अगर आप इंट ले रहे हैं तो इंट 32 सबसे पहले कंपाइलर को उस वेरिएबल नेम से वो डिनोट होगा, इंट 32 ए है तो ए इंट 32, इंट 32 के पहले ए इज द नेम, दैट्स वाई उसका ऑर्डर उस तरह से लिया गया है। तो सबसे पहले कि किस नाम से जानेंगे, स्टोरेज जहां होगा उसको किस नाम से जानेंगे, तो ए नाम से। उसमें जो डेटा रखेंगे उसका टाइप क्या होगा, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना का होगा, देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं। इसीलिए इसी ऑर्डर में गो में आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन भी होता है। पहले वेरिएबल का नाम, सबसे पहले तो वैर कीवर्ड, वैर कीवर्ड से ये पता चल गया कि वेरिएबल आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं, और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लेते हैं। उससे ये पता चलता है कि आपका जो वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होने जा रहा है। उसके बाद फिर आप उसका डेटा टाइप लेते हैं, वो ये बताता है कि वहां जो ए नाम के वेरिएबल में जो डेटा आप रखेंगे उसका साइज कितना होगा, वो मेमोरी में कितने साइज को ऑक्युपाई करेगा। तो जनरल सिंटेक्स इज व्हाट, syntax for variable in Go, we have var keyword, then variable list, ठीक है ना, वेरिएबल लिस्ट आपका एक से अधिक अगर होगा तो, देन ऑप्शनल डेटा टाइप, ठीक है ना, ऑप्शनल डेटा टाइप, एंड देन सेमीकोलन। तो डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर सेमीकोलन मेंशन करेंगे, क्योंकि सेमीकोलन मेंशन करके इंटर करेंगे तो आपका ये लाइन इंटरनली एडजस्टिफाई कर लेगा कंपाइलर, क्योंकि इसके बाद का आपको जो भी ऑपरेशन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू डिक्लेयर वैर ए बी सी, ठीक है ना, एज यानी कोई भी बड़ा अगर इंटीजर ही रखना चाहते हैं, बेसिक डेटा टाइप इंट, so var abc is int. Similarly you can mention here var ch as byte, 1 byte के लिए। Similarly var f salary you can take here float 32, तो ये आपका इंटीजर हो गया बेसिक टाइप, ये बाइट हो गया, ये आपका फ्लोट हो गया। असाइनमेंट डिफिनीशन आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी सेमी कॉलन नहीं ना होगा, यस, सेमी कॉलन नहीं होगा, semicolon at the moment when you type, just see it, where a comma b, सेमीकोलन देंगे, ठीक है ना। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए आपका सेमीकोलन वर्क करेगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में काम नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ देने के बाद या सेमीकोलन यहाँ देने के बाद क्या इफेक्ट आएगा। अब यस, you if you want to declare as a equal to 10, b equal to 20, okay, and just print this value, empty, now when you execute, see here, तो जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सेमीकोलन आपका यहाँ से हट जाएगा, एग्जीक्यूशन पार्ट में सेमीकोलन नहीं रहेगा, लेकिन जब आप डिक्लेयर कर रहे होंगे, जब टाइप कर रहे होंगे तो वहां पर सेमीकोलन मेंशन
करेंगे। अगर सेमीकोलन नहीं मेंशन करेंगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सपोज अगर यहाँ सेमीकोलन देंगे तो सेमीकोलन देने के जब आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेमीकोलन को वो एडजस्टिफाई कर लेगा। तो सेमीकोलन देने से गलती नहीं होगा, कुछ आपका कंपाइलर कोई रॉन्ग मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन चूंकि आप C++ मोड में प्रोग्रामिंग किए हैं तो नोइंगली या अननोइंगली आपको सेमीकोलन प्लेस आउट हो जाएगा। अगर आप में नहीं करते हैं तो दैट इज बेटर, ठीक है ना। अगर सेमीकोलन नहीं देते हैं तो आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेमीकोलन रख दिए तो ये आपका ऑटो चेकआउट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ, वहां पर कोई तरह का एरर नहीं आएगा, इसलिए हम सेमीकोलन लिख रहे हैं क्लास में। ओके सर। क्लास के बाद एक मिनट। हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आपका जो है इसमें अब क्या है कि वेरिएबल आप नंबर ऑफ वेरिएबल आप यूज करेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल के लिए भी हम सेम ऑपरेशंस यूज करेंगे। दूसरा कि यहाँ पर डिक्लेरेशन के साथ अभी क्या है, सी में आप पढ़ रहे होंगे, C++ में जब क्लास पढ़ेंगे तो क्लास में एक फीचर्स है कि क्लास का जो भी मॉड्यूल है, सपोज एक क्लास हम बनाते हैं इंट सी डी, ठीक है, और सम पब्लिक, यहाँ कोई फंक्शन बना दिए, इसके अंदर इसका कोई बॉडी होगा एंड देन क्लोज कर दिए। तो क्लास में क्या है कि यहाँ पर डिक्लेरेशन एरिया में आप एक जो है इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। तो बट यहाँ पर क्या है, इनिशियलाइजेशन शुड टेक प्लेस एनीवेयर, ठीक है ना। आप कहीं पर भी इनिशियलाइजेशन कर लेंगे, जैसे अभी हम लोग किए ए और बी को इनिशियलाइज कर दिए 10 और 20, और कहीं पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्लास के अंदर यहाँ पर आपका C++ में लिमिटेशन है कि यू कैन नॉट इनिशियलाइज द पर्टिकुलर वेरिएबल इन द डिक्लेरेशन एरिया। तो अगर सी या डी को इनिशियलाइज करना होगा तो इस फंक्शन में या तो कॉन्स्टेंटली करिए या रन टाइम में वेरिएबल के थ्रू इनपुट वैल्यू लेकर यूजर डिफाइंड यूजर इनपुट लेकर करिए। लेकिन C=10 और D=20 आपको इस फंक्शन के अंदर ही करना पड़ेगा। सी और डी को आप आउटसाइड ऑफ फंक्शन मेन में भी नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। जैसे आप स्ट्रक्चर में कर रहे हैं सी, अच्छा आप अभी सी पढ़ रहे हैं या C++? C++ सर। सी में क्या, सी में ये चीज कर लेते थे, कैसे स्ट्रक्चर के केस में कर लेते थे ना। ये सी और डी को आप अगर हम चाहें, यस सर, स्ट्रक्चर केस में हो जाता था यस सर। ऐसा कर लेते हैं कि T.C और T.D, ये अगर हम 10 और 20 करना चाहें तो ये आपका C++ में परमिशन नहीं है, ठीक है ना। यू कैन नॉट गेट द परमिशन टू एक्सेस दिस वन, बट यू कैन एक्सेस इन फंक्शन हियर, ठीक है। तो बट व्हाई, बिकॉज द मेंबर, आपका जो डेटा मेंबर है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो इफ you are not mentioning any data type, any accessifier, then it is treated as private. But in case of structure के केस में क्या होता है, बिकॉज स्ट्रक्चर यूनियन हमको यहाँ भी पढ़ना है, तो स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, इट इज बाय डिफॉल्ट, बताएंगे कोई? स्ट्रक्चर का जो मेंबर होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पब्लिक। एनीवन? यशराज, बबलू कुमार? पब्लिक सर। पब्लिक होता है। इसलिए स्ट्रक्चर के मेंबर को हम डायरेक्टली मेन में एक्सेस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू हम उसको डायरेक्टली मेन में एक्सेस कर पाते हैं, यहाँ पर हम कर नहीं पाएंगे। दूसरा कि ये सेमीकोलन आप अगर दे रहे हैं या कोई वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है ना,
डिक्लेयर करने में भी अगर सेमी कॉलन दे दिए तो इट नेवर बी generate any error message, ठीक है ना। You can check it on any टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में देंगे कंपाइलर सेम ही काम करेगा आपका, चाहे आप नोटपैड में लिखें प्रोग्राम, बीएस कोड में लिखें, या आपका गूगल का जो आपका गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्लेग्राउंड है वहां पर लिखें, सारे जगह पर सेमी कॉलन इंटरनली जस्टिफाई आपका कंपाइलर वो कर लेगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में किसी को कोई डाउट? वेरिएबल sir. इनिशियलाइजेशन के लिए आपको दोबारा से var लिखने का जरूरत नहीं होगा। var कीवर्ड के अंदर जो भी वेरिएबल आपका है उसको आप डायरेक्टली वेरिएबल नेम से डिक्लेयर इनिशियलाइज कर सकते हैं कहीं पर भी, एनीवेयर इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट static type declaration in Go. So what do you mean by static type declaration? C++ में आप किए होंगे। सपोज अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं सर वैर डिक्लेरेशन करते समय ही वैल्यू को आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल a = 10 लिख दिया, और मेन जब आप लिखे void main, तो मेन के अंदर भी आपने क्या किया, a नाम का वैल्यू को ही 20 से इनिशियलाइज कर दिया। एंड इफ यू वांट टू, ठीक है ना, इफ यू वांट टू डिस्प्ले दिस वैल्यू तो यू जस्ट टेक a, बट हाउ यू कैन डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ a इन दिस पर्टिकुलर मेन, कैसे एक्सेस करेंगे? a से तो आपका 20 डिस्प्ले हो जाएगा, तो C++ में we use scope resolution operator to extend the particular external variable. You can also perform operation in between the same variable. यानी कि when you write a plus a, then it will give you the result in the form of, ये आपको रिजल्ट क्या देगा, यानी इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटपुट होगा आपका सी आउट। पहला आपका आउटपुट दिया, यहाँ पर एंडल यूज कर लीजिए, तो पहला आपका आउटपुट आएगा a का वैल्यू 20, दूसरा 10 और तीसरा 30। ये क्लियर है ना? ये आप चेक करेंगे, चेक करने के लिए दो कोई भी कंपाइलर सी या C++ कंपाइलर को चेक कर पाएंगे। तो स्टैटिक टाइप डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या है, ये स्टैटिक टाइप डिक्लेरेशन आपका जो है वो ये प्रोवाइड करेगा कंपाइलर को, इट विल प्रोवाइड्स द एश्योरेंस टू द कंपाइलर दैट देयर इज वन वेरिएबल अवेलेबल विद द गिवन टाइप and name so that the compiler can proceed for further compilation without requiring the complete detail about that variable. तो उस वेरिएबल का हर बार आपको डिटेल्स नहीं देने का जरूरत है, एक बार आप उसका नाम फिक्स कर देंगे, फिर आप उसको बार बार यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे इस तरह का वेरिएबल आप कहाँ यूज करते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं ना। जैसे पाई का वैल्यू 3.14 आपको थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूज करना है, तो ये स्टैटिक हो जाएगा। यस सर। तो जहां भी आपको, जैसे अगर एरिया निकालना है तो पाई r², पेरीमीटर सरकमफेरेंस निकालना है तो 2πr, ठीक है। तो ये पाई जहां जहां पाई कॉल होगा वहां पर ये आपका 3.14 कॉल होगा, जिसको सी में सिंबॉलिक कांस्टेंट से यूज करते थे। C++ में सिंबॉलिक कांस्टेंट के साथ एक कॉन्स्ट कीवर्ड भी आ गया, तो कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ भी है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड से हम यहाँ पर भी फिक्स कर सकते हैं। तो अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको फिक्स करना है, देन आप उसको क्या ट्रीट करेंगे, देन इट इज ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा ना। यस सर। तो स्टैटिक टाइप डिक्लेरेशन और डायनेमिक सी में भी और C++ में भी करते हैं।
जब आप यूजर इनपुट लेते हैं किसी वेरिएबल के लिए तो वो स्टैटिक आपका जो है डायनेमिक हो गया। जब आप स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर देते हैं कि नहीं ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20 ही होगा, तो ए और बी पर कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे वो 10 और 20 पर ही ऑपरेट होगा, दूसरा कोई वैल्यू आपका ऑपरेटेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इन स्टैटिक पैकेज main, then fmt not fmt, then import fmt, ठीक है ना, and then after we just take the main function func main, and under func main we declare one variable where x float, ठीक है, float 64 बिट के लिए, and then we declare x is equal to 20, ठीक है ना, and then we print this value अभी जैसे यूज किए थे, तो x को प्रिंट कर लिए और फिर fmt डॉट प्रिंट ln, ठीक है ना, तो दैट इज x इज ऑफ टाइप, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज t न्यू लाइन, अभी स्कैप सीक्वेंस भी हम लोग देखेंगे x। अब नाउ सी यहाँ पर यही x का वैल्यू एक बार इस फंक्शन में कॉल हो रहा है, फिर यही x का वैल्यू यहाँ कॉल हो रहा है, फिर इफ यू वांट टू यूज द सेम सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, देन यू जस्ट इंक्लूड हियर मैथ फंक्शन, ठीक है ना, और मैथ फंक्शन इंक्लूड करने के बाद इफ यू यूज द सेम सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू तो यहाँ लिख देंगे 20 इज एस, स्क्वायर रूट इज द फंक्शन ऑफ मैथ हेडर फाइल मैथ पैकेज, तो मैथ and then s capital qrt, and here we place again x, x यहाँ भी प्लेस कर दिए। इसका मतलब है कि ये x को हमने इसी x का वैल्यू को प्रिंट किया, इसी x वैल्यू x के वैल्यू का टाइप को प्रिंट किया, और फिर इसी x के वैल्यू का हम स्क्वायर रूट भी निकाले। दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग सेवरल ऑपरेशन ऑन द सेम सेट ऑफ वैल्यू। द आउटकम इज फर्स्ट 20, देन x इज ऑफ टाइप फ्लोट 64, और फाइनली जो भी अब स्क्वायर रूट चेक करना पड़ेगा क्या होगा, 20 लिए हैं तो 20 को रन करेंगे तब पता चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज अगर हम यहाँ हरे महा फ्लोट 64 और यहाँ ले लेते हैं अगर 20, इसको कमेंट में डाल दीजिए, then
Square root 20 सही है. Square root of type of A, type of percentage T. Square root is okay. Then type of A is percentage T. So we are using the C format. So here we use the format for C because conversion specifier is there. So just rectify this one. ये अगर आप परसेंटेज टी यूज कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप एक्सपोर्टेड फंक्शन फ्रॉम सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं प्रिंटेड. सी लैंग्वेज यूज करेंगे तब यहाँ एलएन नहीं काम करेगा, प्रिंटेफ काम करेगा. देन आफ्टर द पर्टिकुलर float data type is represented. So in that section also you just rectify this one. In place of println you have to use printf because यहाँ पर conversion specification हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ नहीं यूज किए थे. Not in this one. In this one. Here you have to use printf, which is exported from C language. Here you can use as it is println. परसेंट टी किसका टाइप स्पेसिफायर है? हाँ परसेंटेज टी किसका है सर? टाइप के लिए परसेंटेज टी यहाँ यूज होता है. किसी भी टाइप को अगर कॉल करना है ना तो परसेंटेज टी, ठीक है ना. ओके. तो ये अब ये जब भी आप कन्वर्सन स्पेसिफायर परसेंटेज टी यूज करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि एक्सपोर्टेड फंक्शन सी का यूज करना है, यहाँ पर प्रिंटफ यूज करना है. तो यू कैन यूज द सेम इन डिफरेंट पर्टिकुलर मैनर. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि अगर हमको रन टाइम में वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हाउ वी कैन टेक द पर्टिकुलर. तो वी जस्ट डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास. Till now you just start to initiate the writing a program.